پاکستان کی افغانستان میں دہشت گردوں کو کاری ضرب، پاک فضائیہ کے پکتیکا، ننگرہار، خوست میں حملے، دہشت گردوں کے ساتھ کیمپ اور کمین گاہیں ملیہ میٹ، انٹیلیجنس بیسڈ حملوں میں بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان کی جانب سے گزشتہ رات انٹیلیجنس بیسڈ ایئر اسٹرائک میں 3 صوبوں میں حملے کیے گئے۔ ننگرہار، پکتیکا اور خوست میں موجود فطرت الخوارج TTP کے 7 مراکز کو تباہ کیا گیا۔ فضائی حملوں میں 80 سے زائد خوارجیوں کے جہنم واصل ہونے کی اطلاعات ہیں، جبکہ مزید ہلاکتوں کا بھی امکان ہے۔ تباہ مراکز میں نیا مرکز نمبر 1 ننگرہار، نیا مرکز نمبر 2 ننگرہار شامل ہیں۔ خارجی مولوی عباس مرکز خوست، خارجی اسلام مرکز ننگرہار بھی شامل ہے، جبکہ خارجی ابراہیم مرکز ننگرہار اور خارجی ملا رہبر مرکز پکتیکا بھی شامل ہے۔ وزارت اطلاعات کا کہنا ہے کہ افغانستان میں موجود خوارج باجوڑ اور بنو حملوں میں ملوث ہیں۔ افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال بند کیا جائے۔ باجوڑ بنو حملوں کے پیچھے افغانستان میں موجود خوارج قیادت ہے۔ دوحہ معاہدے پر عمل درآمد ناگزیر ہے۔ عالمی برادری کردار ادا کرے۔ پاکستان نے ہمیشہ خطے میں امن و استحکام برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ اپنے شہریوں کی حفاظت اور سلامتی ہماری اولین ترجیح ہے۔ سرحد پار دہشت گردی پر برداشت کی حد ختم ہو چکی۔ پاکستان کو مکمل علم ہے تشدد کے منصوبہ ساز، سہولت کار اور سرپرست کہاں موجود ہیں۔ پاکستان کے اندر خون ریزی جاری رہی تو ذمہ دار عناصر ہماری پہنچ سے باہر نہیں رہیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ پاکستان کے حالیہ اقدامات دفاع کے فطری حق کے تحت کیے گئے۔ افغان رجیم دوحہ معاہدے میں کیے گئے وعدوں کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ افغانستان میں دہشت گرد تنظیموں کی موجودگی اور سرگرمیاں پاکستان کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ طالبان رجیم نے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں جس پر پاکستان کو شدید تحفظات ہیں۔ امن انکار، دوغلے پن یا دہشت گردی کے خلاف عدم کارروائی پر قائم نہیں رہ سکتا۔ افغانستان میں مختلف دہشت گرد تنظیموں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ پارلیمانی سیکریٹری اطلاعات بیرسٹر دانیال چودھری کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو، کہا پناہ گاہوں میں چھپ کر مسلح افواج اور سویلینس پر حملے کیے جاتے تھے۔ دہشت گرد معصوم بچوں اور خواتین کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا پاکستان میں دہشت گردی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی، جبکہ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے افغانستان میں فطرت الخوارج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ آئندہ بھی حملے ہوئے تو بھرپور جواب دیں گے۔ افغانستان سے ہمارے فوجی چوکیوں پر حملے ہو رہے ہیں، جبکہ طالبان رجیم کو ہم برابر کرا چکے ہیں کہ افغانستان سے دراندازی ہو رہی ہے۔ طالبان افغانستان میں دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانوں پر کارروائی کے لیے تیار نہیں۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی بولے افغانستان سمیت سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے۔ افغانستان اپنی اصلاح کرے ورنہ پاکستان دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ پاکستان نے ہر ممکن کوشش کی یہ نوبت نہ آئے۔ دہشت گردوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جنگ مسلط کی گئی تو پاکستان کو جواب دینا آتا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کہتے ہیں بے گناہ شہریوں پر حملے کرنے والوں سے رعایت نہیں ہوگی۔ قوم متحد ہے، خوارج کے خلاف جنگ میں بھی فتح یاب ہوں گے۔ افغانستان پاکستان کے تحفظات کا ازالہ کرنے سے انکاری ہے۔ ایران سول نیوکلیئر کے لیے درکار تعداد سے زیادہ جوہری افزودگی کر رہا ہے۔ ایران ممکنہ طور پر صنعتی درجے کا بم بنانے کے مواد تک پہنچنے میں 1 ہفتے کی دوری پر ہے۔ یہ واقعی بہت خطرناک بات ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف کا امریکی میڈیا کو انٹرویو، کہا صدر ٹرمپ متجسس ہیں۔ امریکی فوجی طاقت کے بڑھتے دباؤ کے باوجود ایران ہتھیار کیوں نہیں ڈال رہا؟ صدر ٹرمپ نے کہا اتنے دباؤ کے بعد بھی ایران اپنے موقف میں لچک کیوں نہیں دکھا رہا؟ صدر ٹرمپ ایران کے ہتھیار نہ ڈالنے کی وجہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران خطے میں امن اور استحکام کے لیے پرعزم ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان سوشل میڈیا بیان میں کہتے ہیں حالیہ مذاکرات میں عملی تجاویز کا تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکہ اور ایران تجاویز میں حوصلہ افزا اشارے ملے ہیں۔
हम अमरीकी कार्रवाइयों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। किसी भी मुमकिना मंजरनामे के लिए तैयारी मुकम्मल कर चुके ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, अमरीकी फौजी सरगर्मियां हमें नहीं डरा सकती। हमारा जोहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर पुरअमन है। मसाइल हल करने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है। वाशिंगटन के साथ सिफारती हल अभी भी मुमकिन है। जुमेरात को मुमकिना तौर पर जिनीवा में विटकॉफ से मुलाकात करेंगे। सदर ट्रंप की जानिब से सिफारतकारी को आखिरी मौका। ईरान यूरेनियम अफसूदगी सिफर करने से कबल अमेरिका से टोकन मुआहिदा कर सकता है। अमरीकी जरीदे का दावा, अगले 48 घंटों में ईरान से जौहरी मुआहिदे पर तजावीज़ मौसूल होने पर मुज़ाकरात का इम्कान। ट्रंप और ईरान मुकम्मल जौहरी मुआहिदे से कबल अबूरी मुआहिदा करेंगे। मंगल को मुज़ाकरात में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने टोकन मुआहिदे की तजवीज़ दी थी। ट्रंप इंतज़ामिया ईरान की तजावीज़ का इंतज़ार कर रही है। स्टीव विटकॉफ और डेविड कुशनर मुस्तविदा तजावीज़ के बाद तफसीली गुफ्तगू करेंगे। ट्रंप इंतज़ामिया ईरान को सिफर यूरेनियम के लिए दबाव डाल रही है। अमेरिका अलामती अफजूदगी की महदूद तजवीज़ पर गौर के लिए तैयार। ईरान अमेरिका बिलवास्ता जौहरी मुज़ाकरात का तीसरा दौर मार्च में मुतवक्के है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तखरीबकारी का मंसूबा नाकाम बना दिया। बशीन में सुरखाब मुहाजिर कैंप के करीब सीटीडी की कार्रवाई। 5 दहशतगर्द हलाक, असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। सीटीडी के मुताबिक हलाक दहशतगर्द पुलिस लाइन और कैडेट कॉलेज पर हमले का मंसूबा बना रहे थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सीटीडी बलोचिस्तान की सताइश। फोर्स की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। कहा, सीटीडी ने दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। सीटीडी फितनल खारिज के दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। एमक्यूएम ने पीपल्स पार्टी की करारदाद को पाकिस्तान मुखालिफ करार दे दिया। खालिद मकबूल सदीकी की दीगर रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का सिंध असम्बली में खिलाफ आइन करारदाद मंजूर की गई। क्या कोई सूबा आइन से मुतसादिम करारदाद मंजूर कर सकता है? पीपल्स पार्टी की सियासत का आगाज उधर तुम इधर हम से हुआ। 70 के इलेक्शन के बाद जमहूरी तारीख का कैसा आगाज हुआ? 180 सीटें लेने वाला जेल में और 80 सीटें लेने वाला हुकूमत में था। पहले पाकिस्तान, बाद में एमक्यूएम है। पीपल्स पार्टी की करारदाद पाकिस्तान की तकसीम की साजिश है। करारदाद की हिमायत पर जमात इस्लामी शरीक जुर्म है। पाकिस्तान में मजीद सूबे बनाने का इख्तियार आइन में है। मसनूई अक्सरियत रखने वाली जमात ने सिंध पर कब्जा कर रखा है। एमक्यूएम रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत से वजाहत मांग ली। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल दोनों वफाकी वजीर हैं। सवाल पैदा होता है, क्या ये वफाकी हुकूमत की पॉलिसी है? 2 वफाकी वजीर और इत्तेहादी जमात मुसलसल सिंध हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा और साजिश में क्यों मसरूफ है? गवर्नर हाउस आईनी मनसब की अलामत है। इसे सियासी महाजराई या सूबाई हुकूमत के खिलाफ सरगर्मियों का मरकज नहीं बनना चाहिए। वफाकी हुकूमत फौरी वजाहत करे और तमाम वाक़यात के महरिकात वाज़ेह करे। मुल्क पहले ही सियासी और मुआशी चैलेंजेस से गुजर रहा है। वफाक और सूबों के दरमियान कशीदगी पैदा करना दानिशमंदी नहीं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। डॉक्टर खलील को वज़ारत ख़ारजा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन और शराकत दारी को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इज़हार। हलीमा खान ने चेयरमैनशिप के मामले में कभी मुदाखलत नहीं की। पार्टी चेयरपर्सन बनने की ख्वाहिशमंद भी नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का शेर अफजल मरवत के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, 3 मार्च 2024 को पार्टी इंतखाबात हुए। 10 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन को दस्तावेज दिए, जबकि अप्रैल 2024 में तो हम सर्टिफिकेट के मुंतज़िर थे। गुफ्तगू का जवाब ही नहीं बनता। एक अनाड़ी को हुकूमत दी गई तो तरक्की का सफर टूट गया।
वफाकी वजीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 4 साल लोगों को गालम गलोच सिखाने और चोर डाकू कहने के अलावा कुछ नहीं किया गया। हम पर झूठे मुकदमात बनाकर जेलों में डाल दिया। आज लोग जेलों में चीखें मार रहे हैं और आलमी सतह पर बचाव की आवाजें दे रहे हैं। हमने जेलें काटी हैं, कभी चीखें नहीं मारी थी। जेल में बानी पीटीआई को बेहतरीन इलाज मिल रहा है। सीएम ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम फेज 3 का इफ्तिताह। वजीर आला पंजाब ने कुरानदाजी से इफ्तिताह किया। कहा 25 साल में 20,000 ट्रैक्टर, 2 साल में पंजाब के काश्तकारों के लिए 31,000 ट्रैक्टर का रिकॉर्ड बन गया। वजीर आला पंजाब की कुरानदाजी में कामयाब काश्तकारों को मुबारकबाद। कहा ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम आने से ज़रई लैंडस्केप बदल रहा है। नून लीग ने हमेशा काश्तकारों की फलाह बहबूद पर तवज्जो मरकूज की। वजीर आला पंजाब ने कुरानदाजी में नाम लेने वाले बहावलपुर के खुश नसीब काश्तकार हमजा को फ़ोन किया। कहा कुरानदाजी में आपका ट्रैक्टर निकल आया, मुबारक हो। कराची नॉर्थ नाजिमाबाद हैदरी में फ्लैट में गैस लीकेज से धमाका। आतिशबाजी से झुलस कर एक बच्चा जाँ बहक, खातून और बच्ची समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। अस्पताल मुंतकिल। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों और 2 स्नॉकर की मदद से आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड हुकाम ने मुतासरा इमारत को खाली कराया। आग ने 10वें फ्लोर पर 4 फ्लैटों को भी लपेट में लिया। धमाके से 9वें फ्लोर पर फ्लैट समेत दीगर इलाका भी मुतासिर हुआ। मलबा गिरने से मुतासरा इमारत के बराबर खाली प्लॉट में खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। चारसदा में अफसोसनाक वाकया। बटग्राम में फरीकैन के दरमियान फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में दोनों पार्टियों के 2 अफराद शामिल। लाशें THQ हस्पताल शफकदर मुंतकिल कर दी गई। भारतीय फजाइया का एक और लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह। भारतीय मीडिया के मुताबिक हादसा एयरबेस पर मामूल की तरबियती परवाज के बाद लैंडिंग के दौरान पेश आया। पायलट महफूज रहा। भारतीय फजाइया ने वाक़े की वजूहात जानने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कायम कर दी। गुज़श्ता बरस भी दुबई एयर शो में भारत का तेजस तैयारा करतब के दौरान गिरकर तबाह हो गया था।